حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا۔ اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو ملیں گی۔ شہر میں بھی مبارک ہوگا اور کھیت میں بھی مبارک ہوگا۔ تیری اولاد اور تیری زمین کی پیداوار اور تیرے چوپایوں کے بچے، تیری گائے بیل کی بڑھتی اور تیری بھیڑ بکریوں کے بچے مبارک ہوں گے۔ تیرا ٹوکرا اور تیری کوٹڑی دونوں مبارک ہوں گے، اور تو اندر آتے وقت مبارک ہوگا اور باہر جاتے وقت بھی مبارک ہوگا۔ خداوند تیرے دشمنوں کو جو تجھ پر حملہ کرے تیرے روح پر شکست دلائے گا۔ وہ تیرے مقابلہ کو تو ایک ہی راستہ سے آئیں گے پر سات سات راستوں سے ہو کر تیرے آگے سے بھاگیں گے۔ خداوند تیرے انوار ہاتھوں میں اور سب کاموں میں جن میں تو ہاتھ لگائے برکت کا حکم دے گا۔ خداوند تیرا خدا اس ملک میں جسے تجھ کو دیتا ہے تجھ کو برکت بخشے گا۔ اگر تو خداوند اپنے خدا کے حکموں کو مانے اور اس کی راہوں پر چلے تو خداوند اس کی قسم کے مطابق جو اس نے تجھ سے کھائی ہے تجھ کو اپنی پاک قوم بنا کر قائم رکھے گا۔ اور دنیا کی سب قومیں دیکھ کر کہ تو خداوند کے نام سے کہلاتا ہے تجھ سے درج ہے۔ اور جس ملک کو تجھ کو دینے کی قسم خداوند نے تیرے باپ دادا سے کھائی تھی اس میں خداوند تیری اولاد کو اور تیرے چوپایوں کے بچوں کو اور تیری زمین کے پیداوار کو خوب بڑھا کر تجھ کو بھرومند کرے گا۔ خداوند آسمان کو جو اس کا اچھا خزانہ ہے تیرے لیے کھول دے گا کہ تیرے ملک میں وقت پر بھی برسائے۔ ہالیلویا، بیٹھیے، خدا کا برکت دے۔ بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، سبھی کے ہاتھ میں بائبل ہے اور کوشش کریں کہ اپنی بائبل ساتھ لے کے آیا کریں۔ ابھی حوالے پڑھا جا رہا تھا تو میں آپ سنانا شروع ہو گئے۔ خدا آج آپ کے ساتھ گزرے گا۔ آمین۔ خدا آج آپ کے ساتھ سارے بولے بولے گا کہ نہیں بولے گا؟ زور سے بولیں، خدا بولے گا۔ لتاں چھڑو، گوٹے چھڑو، خدا بولے گا آج۔ مل کر دیکھیں، خدا میرے ساتھ بولے گا۔ جو نہیں آتی، خدا میرے ساتھ بولے گا۔ زور سے بولے، خدا میرے ساتھ بولے گا۔ جماعت ابھی ریڈی نہیں، میں آگے نہیں بڑھوں گا، سارے بولیں، خدا میرے ساتھ بولے گا۔ خدا میرے ساتھ بولے گا۔ خدا میرے ساتھ بولے گا۔ بچے زور نہ بولیے، خدا میرے ساتھ بولے گا۔ خدا میرے ساتھ بولے گا۔ ابھی ہم نے حوالہ پڑھا بائبل میں، جو ہم نے پڑھا 28ویں باب کی پہلی آیت میں، اور اس کو وہاں تک خدا کے خادم نے پڑھا کہ جہاں تک برکتیں، کہاں تک پڑھا؟ کیا کوئی جو تو آپ کی دھیان اگر میری پوری بات کا پورا ایکٹیو جواب دیں گے تو پھر آگے خدا کے ساتھ ہوگی۔ ایک منٹ میں بات میں نے کوشش کی کہ مجھے بیٹھنے ملتے لیکن بیٹھنے مجھے ملے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ 5 کتنے لوگ ہیں؟ یہ 5 لوگ ہیں۔ اگر 5 لوگ ہیں، یہ مونا کا گول سامنے، یہ 5 بٹن نظر آ رہے ہیں؟ یہ 5 بٹن نظر آ رہے ہیں؟ مونا سامنے دیکھو بیٹا، یہ دوسرا بٹن کس کا ہے؟ کس کا نشان ہے؟ کس کا نشان ہے؟ دوسرا نشان کس کا ہے؟ باقی مغرب کا دوسرا نشان کس کا ہے؟ بولو۔ تیسرا نشان منشا کا ہے۔
ادھر دیکھیں یہ اس کا عشق ہے یہ کس کا ہے یہ بیٹی دلیتا ہے اچھا دسو ذرا کڑا کڑا نشان ہے اپنا اپنا نشان دسو کڑا باجی دسو کڑا کڑا سینٹر پہلا کڑا کڑا میرا سینٹر والا ہے رائٹ کارنر نیچے والا نیچے والا کون سی سائیڈ والا ہے رائٹ رائٹ والا لاسٹ کارنر ہے اچھا دکھائیں ذرا کتاب کھول دے ابھی میں نے نشان کس پہ لگایا ہے نہیں نہیں نام بتانا انہوں پیچھے دیکھو آگے دیکھو ابھی میں نے نشان لگایا کس پہ لگایا کس پہ لگایا نظر آیا کس پہ سامنے کس کے نشان لگایا سینٹر میں آ رہا ہے آپ کا فوکس ایسے ہونا چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو فوکس کرنا ہے اپنے نشان کو اپنے گول کو فوکس کرنا ہے اگر آپ نے ابھی نشانہ لگا سکتے ہیں جو میں نے نشان لگایا کوشش صحیح بولو آ جاؤ نشان آپ نے اپنا نشان لگاؤ اپنا نشان بتا کے نشان لگانا یہ رائٹ کارنر والا کون سا یہ والا جی یہ بولنا نہیں ہے انسان کا نشان ہم دیکھ کے نشان لگاتے ہیں انشاءاللہ بیٹھ بیٹھ اگلے کو مائیں گے اگلے کو پکڑاتے رہے اچھا اپنا نشانہ بتا کون سا لیفٹ نشان نام ہی لگے لیکن آپ نے نشان بتایا نیچے رائٹ والا یہ والا کون سا یہ آپ کا شاباش اس کے لیے تعلیم ملے آپ کا کون سا نشان ہے میرا لاسٹ میں لیفٹ کارنر جی شاباش تعلیم ملیں گے سب اچھا یہ بات نشانے سننے کی نہیں ہے نشان کس بات کی ہے نشانے کی بات تھی میرا خیال سے دوبارہ دوبارہ ٹرائی مارے نا تو صرف اپنے اپنے نشان پہ لگا سکتے ہیں کیا خیال ہے ایک دفعہ غلط ہو گیا دوسری دفعہ غلط ہو گیا تیسری دفعہ غلط ہو گیا چوتھی دفعہ غلط ہو گیا میں ویسے مار رہا ہوں آپ نے اپنے نشان کو فوکس کرنا ٹھیک ہے سمجھ آگے بات کی کہ نہیں آئی آگے نہ سمجھ زبردست تعلیم ہے اچھا ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ پہلی آدمی کیا پڑھا ہے اگر تو خداوند اپنے خدا اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جان افسانے سے مان کر اگر تو شرط ہے شرط ہے کہ نہیں شرط ہے اگر تو خدا کی بات کو جان فشانی سے مراد پتہ کیا ہے میں نے پہلے بتایا اپنا نشان اپنا گول رکھنا ہے کسی پہ طلاق کو ٹچ نہیں کرنا کہ یہ بنانا ٹھیک ہے میں نے ابھی 5 بٹن اور 5 خطوں کے طور پہ سامنے بیٹھی بہنوں کو میں نے پریکٹیکل کیا کہ اپنے نشان پہ فوکس کرنا بٹن نہ دیکھ دلوں کے کلام سننا اپنی زندگی پہ غور کرنا ٹھیک ہے اپنی لائف پہ غور کرنا ہے اگر کسی کی زندگی پہ غور کریں گے کسی کے نشان پہ غور کریں گے نا آپ کا نشانہ غلط ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا سبھی نے تھوڑی سی آواز کم کرنا ابھی ہم نے پڑھا اگر تو احتیاط کر کے آگے کیا لکھا ہے جان فشانی سے میرے کلام کو پورا کرے بائبل کالج میں پڑھا رہا تھا تو لفظ جان فشانی اس کا مطلب ہے جان نشاور کرنا اس کا مطلب ہے جان کسی کے لیے دے دینا اور سے کلام کو سنیں گے کسی کے لیے جان دے دینا جان فشانی سے اور استثنا کی کتاب میں چھوٹا تھا میں
कराची जाया करता था, बाइबल में साथ लेता था, मैं बड़ा खुश हुआ। गाड़ी के डिब्बे के ऊपर, बुकी के ऊपर लिखा है इस्तिस्ना। क्या लिखा है? मैं बड़ा खुश हूँ, मैंने कहा बाइबल की किताब का नाम इस्तिस्ना लिखा है। तो मैंने सोचा और मैंने रिसर्च की, इस्तिस्ना का मतलब है दोहराना। इस्तिस्ना का क्या मतलब है? दोहराना। दो डब्बे होते हैं, डब्बे के दो दरवाजे होते हैं, बुकी के दो दरवाजे होते हैं। कभी गए ट्रेन में बैठे? हां जी। एक के बुकी का दो दरवाजे होते हैं। और इस तरह की किताब का मतलब क्या है? दोहराना। मूसा ने ये किताब लिखी और आखिरी बाब में हम देखते हैं कि मूसा की डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है, और आखिरी हिस्सा इसका मतलब है शायद मेबी के जोशुआ ने लिखा। ऐसे आखिरी जो हिस्सा है जहाँ मूसा की वफात हो जाती है, उसके बाद फौरन से जोशुआ की किताब शुरू होती है और जोशुआ खुदा के साथ कलाम करता है और जोशुआ इस किताब को मुकम्मल करता है। उस्ताद के उस अधूरेपन को, उस अधूरी किताब को, उस खुदा के कलाम को जो खुदा ने उस्ताद को दिया और जोशुआ ने उस कलाम को पूरा किया। और आज हम देखेंगे जान फशानी का लफ्ज़। ये लफ्ज़ कैसा है? कौन सा लफ्ज़? जोर से बोलेंगे, कौन सा? जान फशानी। हम सुबह से लेकर शाम तक, गर्मी हो या सर्दी हो, अपने बच्चों के लिए मेहनत करते हैं और जो हमारा फोकस होता है, जो टारगेट होता है, जो काम हमने करना होता है, मजदूरी करनी है, जो हम जॉब करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हमारा वही निशान होता है कि हमने करना है। गर्मी की परवाह ना करते हुए फिर भी बीमार हैं तो भी, अगर तंदुरुस्त हैं तो भी, अगर कोई परेशानी आ जाए तो भी हम उसको, उस निशान को फोकस करते कि नहीं करते? करते हैं ना? सभी करते हैं ना? अच्छा, दूसरी बात मुझे ये बताएं, मिसाल के तौर पे भाई भी गवर्नमेंट मुलाजिम है, अलिशा भी गवर्नमेंट मुलाजिम है, और कौन कौन गवर्नमेंट मुलाजिम है? और कोई नहीं है। प्राइवेट कितनी है? बाजी हैं, तकरीबन प्राइवेट ज्यादा है। भाई भी प्राइवेट जॉब करते, प्राइवेट वाले भी ऐसे ही करते हैं। सुबह जो टाइम पीरियड होता है उसमें हम टाइम से जाते हैं। कलाम में लिखा है, खुदा ने कहा कि अगर तुम सारी बरकतें की फरिश्ता आपने पढ़ी, सारी फरिश्त के बाद खुदा ने कहा कि अगर तुम जान फशानी से मेरे कलाम पर अमल करोगे तो उसके बाद लिखा है 12वीं आयत में क्या लिखा है? आसमान जो मेरा अच्छा खजाना है मैं तेरे लिए खोल दूंगा। सारे जोर से बोले, मैं तेरे लिए खोल दूंगा अगर तू जान फशानी से। ये मेरी बेटी प्यारी सहर बाइबल कॉलेज में कुदरती तौर पे मैंने इसे पूछा कि तू जब ये फर्स्ट ईयर के पेपर हुए तो तूने सारे पेपर दिए? कहती है मैंने सारे पेपर दिए। तो मैंने कहा किसी पेपर में तू बीमार हो गई हो? कहती है कि जब मेरा उर्दू का पेपर था, एक दिन पहले टांग पे, 2 दिन पहले मेरी टांग पे, पांव पे दूध गिर गया, गर्म दूध गिर गया, पांव सड़ गया, जल गया। कहती अकेडमी तो मैं नहीं गई, लेकिन पेपर देने के लिए मैं वहां पहुंची। इसको पता था कि अगर मैं ना गई तो मेरे नंबर, जो मैंने सारा साल पढ़ा ना, तो मेरे नंबर कम हो जाते। इसको पता था कि मेरी तकलीफ है, पाँव मेरे जला कर, छाले भी हैं। मैंने ऐसे भी देखा है कि कलिसिया में मनीराबाद में बच्चा था, छोटा ही, प्रेप क्लास में था, उसकी बाजू भाई टूट गई, बाप उसका छोड़ने जा रहा है। उनका भी ऐसे सिस्टम है, 3 बेटी के बाद 1 बेटा है। बाजू टूट गई और पेपर था, दूसरा के तीसरा शायद पेपर था। बाप ने पट्टी करवा के स्कूल लेके गया। कैसे? बाजू टूट गई है, इकलौता बेटा है, बाजू टूट गई है, इकलौता बेटा, पट्टी करवा के फिर स्कूल पहुंचा दिया और पेपर दिलवाया। किस वजह से? साल सारे बोले साल, जोर से बोले साल। 12वीं आयत में हमने पढ़ा है, खुदा ने कहा मैं मी वक्त पे
साल जाया नहीं होगा अगर तू जान फशानी से अमल करे। हम दुनियावी कामों में हड्डियां टूट जाए, जिस्म जल जाए, अपने उस काम को जो जिस्मानी होता है फोकस करते हैं और उस काम को अपनी जिंदगी से नहीं निकालते। लिस्मा ड्यूटी को गवर्नमेंट जॉब करती है, इसको फिर प्रभाव होती है, मोबाइल इसके पास होता है, घर फोन करके पूछते हैं किसी का खाना खाया। आज बच्चे, चारों बच्चे माँ को कह रहे हैं आपने हमारे साथ चर्च जाना है, जयपुर से कोई कह रहा है गाड़ी में आपने हमारे साथ चर्च जाना है, हमारे खाने की प्रभाव जोर से बोले, हमारे खाने की प्रभाव। कोई माँ के जहन से ये बात डिलीट नहीं कर सकता कि माँ किसी दूसरे शहर में जाए, जॉब पे जाए, किसी जगह पे जाए, कि माँ भूल जाए कि मैंने बच्चों के लिए खाना पकाना है। हो सकता है? हो सकता है? कलाम कहता है हो सकता है, बाइबल कहती है हो सकता है। बाइबल कहती है कि शीरखार दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को भूल जाएगी, और मैंने ऐसे होते भी देखा कि माएँ बच्चों को छोड़ के बेवफाई कर रही है। लेकिन खुदा के बारे में मैं भी गवाह हूं, और आज पता नहीं कितने चर्चों में एक गवाही दी जा रही है कि खुदा वफादार है। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया के चर्चेस में ये गवाही दी जा रही है कि आज इतवार का दिन, फतहमंदी का दिन है, वो वफादार खुदा ने आज के दिन कब्र और मौत पर फतह पाके वो जिंदा होकर साबित किया कि वो वफादार खुदा है। आज दुनिया के तमाम चर्चेस में इस बात के लिए गवाही दी जा रही है, और ये दिन क्रिश्चियनों के लिए, यहूदियों के लिए सब्त का दिन, हफ्ते का दिन है, लेकिन क्रिश्चियनों के लिए इतवार का दिन, सब्त का दिन कहलाया जाता है, क्योंकि आज के दिन कब्र और मौत पर फतह पाने वाला यीशु, जिसकी हम बंदगी करते हैं, प्रशिश करते हैं, और जिसने कहा मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं, मैं किसी को यतीम नहीं छोड़ूंगा, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ज़बूर 113 में खुदा का बंदा दाऊद इसके लिए ये कहता है कि मैंने सारे रिश्ते खत्म हो गए, लेकिन खुदा ने मुझे पकड़ा, मौसला से, गंदगी से निकाल के मुझे पूरा के साथ उठा दिया। खुदा वफादार है। गरीब है, आपकी जॉब नहीं है, खुदा के साथ जान फसानी से आप चलते रहे। आप खुदा को पूरा वक्त दें, और जब आप पूरा वक्त देंगे वो बेवफाई नहीं करता, वो स्लीप पर आपके लिए जान भी दे देता है। दोस्त से आप जिसके साथ जितना मर्जी वक्त गुजारें, आज के हालात में कभी उससे उधार पैसे मांग के देते हैं, और कई अज़मा भी देते हैं, कई अज़मा भी देते हैं कि मैं पैसे उधार मांग रहा हूं। लेकिन यीशु मसीह और खुदा की कलामी ज़बूर 34 में लिखा है खुदा बड़ा ही वफादार है, उसको अज़मा कर दे। और यहाँ खुदा कलाम मुस्लिम ने पढ़ा, उसने कसम खाई है। क्या खाई है? कसम खाई है कि मैं तेरे लिए जमीन से अनाज को पैदा करूंगा, और जहां तू बोएगा दुनिया में मैं तेरे लिए मुहैया कर दूंगा। हालेलुया, कलाम मुस्लिम में लिखा है खुदा का बंदा अब्राहम, जिसके बारे में हम ये जानते हैं ईमानदारों का बाप, इसको लक़ब मिला है। जोर से बोले जरा, कौन सा लक़ब मिला है? ईमानदारों का बाप। जोर से बोले। अभी मजा नहीं आया? इस अब्राहम को हमारे मुस्लिम भाई, यहूदी भाई और क्रिश्चियन भाई फॉलो करते हैं, और ये यहूदियों का भी बाप है, और ये हमारे मुस्लिम भाइयों का भी बाप है, और ये क्रिश्चियनों का भी बाप है। तीन बड़े मजहब हैं, तीन बड़ी कौमें हैं दुनिया में, जिनका फॉलोअर जो है वो ईमानदार अब्राहम है। हालेलुया, और कलाम मुक़द्दस में लिखा है अब्राहम के बारे में कि खुदा ने जब इससे कहा कि अपने रिश्तेदारों
کو, नातेदारों को, अपने अजीजों को, अपने ताल्लुक वालों को जिससे तेरी गवाही खराब होती है, इनको छोड़ दे। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है अपने भाइयों को, रिश्तेदारों को, अजीजों को, तमाम को जब छोड़ देता है तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो एक जगह पे पहुंचता है। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है जब वहां पहुंचता है तो अपने भाइयों को जो पुत्रों की परस्तिश करते हैं, और सुनिए, पुत्रों की परस्तिश करते हैं, वो कह रहे मैं तेरे पुत्र दे देना तू ना जा, मैं तेरे बेटा दे देना, अपना पुत्र दे देना तू ना जा, तू ना छड़ सानू, मैं तेरे वास्ते ऐ कर दूंगा वो कर दूंगा। लूत दे भी दिया, लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा उसने भाई की मोहब्बत को नहीं छोड़ा, उस भाई को, भाई की औलाद को साथ ले लिया। कलाम मुकद्दस में लिखा है वो साथ लेता है और जान फशानी से दुश्मनों का सामना करता हुआ खुदा की उस बात को पूरा करता हुआ कलाम मुकद्दस में लिखा है जब एक मुल्क में पहुंचता है तो वहां लिखा है कि एक बादशाह था जो बीवियों को ले लेता था जबरदस्ती। कलाम मुकद्दस में लिखा है खुदा ने उसको रात को दिखाया ये मेरा बंदा है, ये मेरा और से बोले, जोर से बोले, ये मेरा बंदा है। मैं वाली साहब को कह रहा था, मैंने कहा अगर हम खुदा की गैरत रखेंगे ना तो खुदा हमारी गैरत भी रखेगा। अगर खुदा की गैरत को रखेंगे तो खुदा हमारी गैरत रखेगा। खुदा ने कुछ लिखा है अभी मनो को खुदा ने बताया कि इन हाथ ना लगे, इन छेड़ी ना, इन नबी दी भी नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। इसको छूना भी ना। इसकी वजह से मैं तेरी कौम के, तेरे मुल्क के रहन बंद करूंगा। हाले खुद बेऔलाद है, खुद बेऔलाद, जिन्हों तू हाथ लाया ना तो मैं तेरी तबाही ला लूंगा, मैं नस्ल ही पैदा होने दूंगा ते वो जान फिशानी दे नाल चंगी जान है बाजी। हालेलुया हालेलुया। समझ आ रही बात की? खुद बेऔलाद है जी, खुद बेऔलाद है, और उसकी वजह से जिन्होंने उसको गंदी नजर से देखा उनके रहन बंद हो गए। खुदा ने कहते तेरे औलाद ही नहीं हुई। ये है जान फिशानी से आप चलते नहीं, खुदा आपका इंसाफ करता है। और कलाम में लिखा है चलता गया चलता गया चलता गया, और आगे लिखा है वक्त गुजर गया, साल गुजर गए, लूत बड़ा हो गया, अब खुदा इसको कहता है इसको अपने से जुदा कर दे, अपने से जुदा कर दे। और कलाम में उसमें लिखा है कि जब लूत को खुदा ने ये कहा कि इसको अपने से अलग कर दे, क्योंकि ये रुकावट बन रहा था जान फिशानी में। कुछ थोड़ा सा फर्क था, और इधर देखें सर लग जाएंगे, इधर में थोड़ा फर्क था, जान फिशानी में थोड़ा सा फर्क था, जान निशावर करना। ये मैसेज बढ़ गया ना, ज्यादा हो गया, चेंज हो गया ना, मुझे भी नहीं पता। अब खुदा से कह रहा है इसको अपने से ज्यादा कर। खुदा जानता था कि जान फिशानी में कुछ थोड़ा सा फर्क है, उसने ज्यादा छोड़ दिया उसको। उसके बाद कलाम में लिखा है वो आगे बढ़ा, उसके बाद 18वां बाब है, बैठा है सोच रहा है। जान फिशानी के साथ चलने के बाद ये हर इंसान के ऊपर, इसका वॉल्यूम खोल दो, हर इंसान के ऊपर एक ऐसी खौफ वाली बात तारी होती है, हम बैठ जाते हैं सोचते पता क्या है, इन सालों में खुदा ने बचा रिश्तेदार चल देखिए ये साल लगाना शुरू कर देते हैं। अब्राहम गिन रहा है रिश्तेदारों को छोड़ा, ये किया ये किया। खुदा कहता है वो जगह पर बता खैमे से बाहर आया, देखता है खुदा को ऊपर देख, अंधेरा था, खुदा का आसमान के तारों को देख,
तारों को देखता है। खुदा ने कहा गिनो, उसने कहा नहीं मैं नहीं गिन सकता। खुदा ने कहा जमीन के जर्रे, उसने कहा देख रहा हूं मैं, रेत है इसके जर्रे गिनते था मैं गिन नहीं सकता। ऐसी नस्ल मैं तुझे दूंगा। और कलाम में लिखा है इसके बाद खुदा एक बेटा देता है। कितने बेटे? एक। कितने बेटे? एक। अब्राहम के कितने बेटे थे? कितने बेटे थे? चले आज ये बताएं बाइबल वालों के स्टूडेंट सारे प्रशिक्षण नहीं बोलेंगे भी शायद पता है। चले प्रशिक्षण नहीं बोलेंगे। अब्राहम के कितने बेटे हैं? कितने बेटे हैं? बाजरी दो। और कोई? हाँ जी बताएं बताएं कितने बेटे हैं? हाँ जी 8 बेटे। में से भी, लोगों में से भी, साजरा में से, सारा में से, लेकिन जिसके साथ वादा था वो एक ही है। हालेलुया। कितने हैं? एक है। और कलाम में लिखा है जिसके साथ मिलके खानदान को बाय बाय कहा, उसी के साथ खानदान का इब्तिदा का फीता काटने वाला है। खानदान को बाय बाय कहा, दोनों मियां बीवी बाय बाय, हम जा रहे हैं। ऐसे का रो रो के गले लग लग के दोबारा नहीं मिलेगा। ये मरने का हाल है। जैसे मरने के वक्त हम मिलते हैं ना, ये वो सीन था। खत्म करके आगे सारा कुछ अत्यात और लफ्ज क्या है? जान, मौत वाला सीन सारे खत्म कर दिए। और कलाम में लिखा है कि अब एक बेटा जिसके साथ वादा है खुदा ने दिया, इसहाक। और कलाम में लिखा है कि इसहाक खेल रहा है। इसहाक जोर ना बोलो जरा, खेल रहा है। बाप का दिल लग गया उसमें। बाप को नजर आ गई दुनिया मेरी बात हो गई है। बाप को समझ आ गई खुदा ने जो वादा किया था पूरा कर दिया है। खुदा देख देख के अब्राहम को हसरत होनी शुरू हो गई। बाइबल को सुनते जब काश की किताब में पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। ये खुदा का अब्राहम ने पुत्र दी खुशी दे विच खुदा दे नाल उसरा दी मोहब्बत छोड़ दी। खुदा ने तो चेक ते करा देना ऐसे ना, पहली सी मोहब्बत ने क्यों छोड़ दी? अब खुदा ने कहा कि पुत्र, मेरे पुत्र की मैं कुर्बानी मांगूंगा। सारे जरा बोलना, बच्चे बैठ जाओ जरा, प्लीज बैठ जाओ। सुनिए जरा कलाम को गौर से। कितने पुत्र हैं? इसके साथ वादा है। इसके साथ वादा है। एक ही पुत्र है खुदा ने दिया। उन्होंने क्या? एडी कुर्बानी दे। केड़ी कुर्बानी? सोख्तनी। कौन सी कुर्बानी? सोख्तनी कुर्बानी के पीस करके आग ऊपर जला दिया जाता है, राख बना दी जाती है। अब खुदा ने अब्राहम को बुढ़ापे में ये बेटा दिया। अब्राहम जिस दौर में ये बेटा मिला ना, सारा भी हंसी थी, मैं तो इस काबिल ही नहीं है। लेकिन पता नहीं बंदा की नहीं जान पहचान है, खुदा की खिदमत कर रहा है, खुदा के काम कर रहा है, सारा हंसी है। लेकिन तो वो सारा हंसी है, मेरी वो कैफी भी नहीं है, तदीर भी नहीं है। मैं खुदा मुझे नहीं दोबारा देने, बल्कि दोबारा की पहली दफा नहीं दे सकता। उसकी फरमाइश पे हाजरा के साथ शादी की, हाजरा से इस्माइल पैदा हुआ। उसकी उम्मीद खत्म हो गई। जब खुदा ने कलाम किया तो वो हंसती है। कलाम में उसमें लिखा है जब हंसी तो खुदा ने कहा हंसिया। मेरी गाल देने यकीन नहीं करते। हाल भी कई दफा कलाम सुन के तो बाद जब कह के मार के इन डांट क्यों जाते हैं। लेकिन जिसके साथ वादा होता है वो कभी हंसता नहीं है। यीशु जी ने जब उस बच्ची को जिंदा किया तो कलाम में उसमें लिखा जितने भी हंसने वाले थे सारे बाहर निकल गए। कई हासे उससे दे विच ही गाना सुने ना, नहीं मैं हासिया से यार को आया
ਚ ਹਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਕਿਆਂ ਦੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਠੱਠੋਂ में नहीं उड़ाएगा। सारा हंसी कलाम लिखा है वो हंसी, उसके बाद खुदा ने कहा इसको जरा पोष ऐसे नहीं सिर्फ खुदा ने सबूत लेना सी कहते नहीं मैं नहीं हंसी जेड़ा कुड़ियां का काम है बीबियां का काम ही है गल करके मुकर जाना ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਮਰਮਤ ਕਰਨਾ ਮੁਕਰਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਆਸ ਹੈ ਕੋਲੋਂ ਲਾਲਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗਰਮੀ ਚ ਮਰਨੇ ਆ ਇੱਕ ਹੀ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਲਾਲਤਾ ਨਾ ਹੱਥ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਹਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅੱਜ ਗਰਮੀ ਚ ਮਰਨੇ ਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਲਾਇਆ ਸਫਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਖਾਨਦਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਨੇ ਗੱਲ ਵਧਾਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਬੜੇ ਪਛਤਾਵੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਜਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ, ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਸੀ ਮੰਨਦਾ, ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਸੀ ਮੰਨਦਾ। ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਇਸਮਾਈਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਖਤਮ। ਹੈ ਸਵਾਲ ਦੇ सारे ने ਜਿਹੜੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ठीक है ना। अब बात आगे लेके जाते हैं। कलाम में उसमें लिखा है इसहाक जब लड़कपन में आ गया ना, अब्राहम उसकी ख्वाहिशों में, उसकी सोचों में, उसके ख्यालों में देखता है मेरे बेटे के कान कैसे हैं, हाइट मेरे बराबर हो गई है, मेरी जुतियां आना शुरू हो गई है, मेरे काम जो थे पानी वाली कैन मैं जो नहीं उठा पाता था ये उठा लेता है, जो वजन वाली बात थी गर्दन पर थोड़ा मैं लेके जाता था आप इसहाक लेके जाता है। तो देख देख के खुदा की मेरे ख्याल शुक्रगुजारी कम हो गई और इसहाक की शुरू हो गई। खुदा ने कहा कि कुर्बानी दे यदि तेरा निकाले तेरे सवाब को शायद 18वां बाप होगा 22वां बाप जो पढ़ देगा। इन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने इब्राहिम को आजमाया और उसने कहा ऐ इब्राहिम, उसने कहा मैं हाजिर हूँ। तब उसने कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को सुने जरा, खुदा ने कलाम किया और अब्राहम क्या कहता है? हाजिर किसे कहते हैं? आपका हाजिरी लगती है ना जी? कौन कौन हाजिरी लगवाता है जी? हाजिरी लगती है ना? एक भी अटेंडेंस महीने में कम हो जाए तो सैलरी कटने का खतरा होता है। अगर ये आपका क्या कहते हैं, ये आपका सिस्टम खराब हो जाए ना, आपको जॉब से भी निकालने का खतरा हो सकता है। खतरा हो सकता है कि नहीं हो सकता? खतरा हो सकता है। अटेंडेंस पूरी करते हैं बच्चे, अटेंडेंस पूरी करते हैं, प्ले से मैट्रिक तक, मैट्रिक से आगे तक अटेंडेंस को पूरा करते हैं और हम सोचते रहते हैं कि अटेंडेंस पूरी हो जाए। और बच्चे जब स्कूल में पहले वक्त में पढ़ते थे ना, अभी का तो पता नहीं है, पहले अटेंडेंस का भी अवार्ड मिलता था। मैं भी बड़े शौक से जाता था, मेरी भी छुट्टी नहीं होती थी स्कूल में भी, लेकिन मुझे मिलता नहीं था। तो मैं फिर से एक और बच्चा आता था, वो लेके चला जाता था, वो सब मुझे पढ़ाता था, लेकिन मैं कहता था चलो कोई बात। अब खुदा ने कहा इसकी अब्राहम ने कहा मैं हाजिर हूं। माइक पकड़ ले, माइक अपने पास कर ले। हाँ जी, खुदा ने आवाज दी है, वो अपनी खुशफहमियों में अपनी उदासियां खत्म करके अपनी खुशियों के बारे में सोच रहा है। तो खुदा ने आवाज दी और उसने कहा मैं हाजिर हूँ। देखो बच्ची, जब खुदा को आवाज देगा, बाप बुलाएगा,
दोस्तों को छोड़ के क्या कहेंगी? मैं हासिल हूं। देखो जो दास थी कि मैंने अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, मैंने कहा नहीं, जिन्हें देता ना सारा कुछ लेना नहीं जानता। लिस्टों को मैं कह रहा था, आपकी सारी ख्वाहिशें आपके बाप पूरा करता है, आपके बाप का बाप खुदा बाप पूरी करता है, तो अगर उसकी इबादत नहीं करेंगे तो वापस भी लेना जानता। क्या लिखा है? मैं हासिल हूं। उसने कहा इधर आ मेरी बात सुन, आज जरा तेरा पुत्र है ना, जेड़ा तेनू बड़ा प्यारा है, जेड़ा तेनू बड़ा प्यारा है, जेड़ा तेनू बड़ा प्यारा है। अपनी ईमानदारी ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਓਗੇ, मोहल्ले में कत्ल हुआ, गर्दन लड़के की उतार दी, लड़की की उतार दी, कोई निशान नहीं बचा। कत्ल किसने किया? वो जो था ना इलाके का जो स्कूल इंचार्ज मेरा दोस्त था, कहना मैं चाह दे विच लाची तो शक शुरू हो गई। ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਚੀ ਤੋਂ ਤੇ ਲਾਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਬਿਸਕਿਟ ਪਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪੇਕਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਪੇਕਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੇ ਪੇਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰਾ ਬਾਪ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਕਾਤਲ। ਸੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੇਕੇ ਆਏ ਹੋ तो ਦੱਸੋ बाहर जाओगे? खुदा ने कहा जिससे तू प्यार करता है, तेरा प्यारा है, उसकी कुर्बानी दे। कलाम लिखा है सारा को नहीं बताया कि गम में मार ना जाए, एक ही बेटा है, इसके साथ वादे हैं, रिश्तेदारों को छोड़ दिया, आखिरी भाई की औलाद को साथ लेके आया, लूत को भी खुदा ने छुड़वा दिया। खुदा कहना क्या चाहता है, खुदा देना क्या चाहता है, खुदा करना क्या चाहता है, समझ नहीं आ रही। अब बेटा दिया, बेटा भी मांग लिया। और कलाम लिखा है सारा को नहीं बताया, गधा लिया, गधे पे जीन कसी, लकड़ियां रखी, आग ले ली, बेटे को साथ ले लिया। अब आगे जरा पढ़े जरा, तो लिखा है कि बेटे को साथ लेकर के मूरिया के पहाड़ के ऊपर चला गया। और सफर पता है कितने दिनों का था? सारे बोले 3 दिन का सफर, जान शानी के साथ। पहाड़ से लकड़ी लेके आ, मेरे घर की खिदमत कर। खुदा आसानी में नहीं मिलता, जमीन के कोई नहीं बरकत आसानी में नहीं मिलती। जैसे कि अमीर हो जाए, लेकिन जिस्मानी वीडियो देख रहा था तो शख्स कह रहा है कहता है अमीर बनना चाहते, करोड़पति बनना चाहते, नौशगर देखिए करोड़पति बनना चाहते और नींद को छोड़ना नहीं चाहते, नींद को अमीर होना चाहते हैं, इसी में बैठना चाहते हैं और गर्म हवा खाना नहीं चाहते। तो कलाम में कुछ क्या है? अब खुदा ने इसहाक की कुर्बानी मांग ली। कुर्बानी जब मांगी, 3 दिन का सफर किया, बड़ी बेचैनी लग जाती है, आपका बड़े से बड़ा नुकसान हो जाए, उसके बाद आपके जिस्म की जो कैफियत है डिप्रेशन में चले जाएंगे। और ये बुजुर्ग है 75 साल में, इसको बेटा भी है ना 99 साल 75 साल की साल है, सॉरी 100 साल के करीब है ना, 100 साल 99 साल की बरकत मिली तो 100 साल के पुत्र मिला तो 100 साल का पापा ते हार्ट फेल हो सकता। हाँ मतलब 100 साल के होते हैं हार्ट फेल हो सकता है। ये खबर सुनते कालू की डेथ हुई ना तो मुझे ज्यादा परेशानी ये नहीं थी, कालू की डेथ हो गई, मुझे ये था कि नौजवान की मौत हो गई है, मेरी माँ का भी वाक़या क्या बना। उससे पहले खुदा ने मुझे तजर्बा दिया था कि हमारा भी कोई
بیٹا تھا جو جس کی ڈیتھ ہو گئی، اس کی جدائی میں نہیں برداشت کر پا رہا، تو مجھے یہ تھا کہ تو جوان کر کے ماں کیسے برداشت کرے گی، باپ کیسے برداشت کرے گا. تو رستے میں میری جان نکل رہی تھی جب ہم 1 گھنٹے کا سفر کر کے HQ سے، یہ 3 دن کا سفر. جاتے جاتے دیکھتا ہوگا یہ لاش جا رہی ہے، کیا خیال ہے؟ پہلے دیکھ رہا ہے یہ پانی اٹھا رہا ہے، یہ گندم کا توڑا اٹھا رہا ہے، اب دیکھ رہا ہے یہ لاش جا رہی ہے. کیا جا رہی ہے؟ سوچتا ہوگا کاٹوں گا کہاں سے بیٹے کو، کاٹوں گا کہاں سے. کلام میں لکھا ہے کہ جب تو بیٹے کو پہاڑ کے اوپر لے کے جاتا ہے نا، میرے کو نہیں ہو سکتا ہے لیکن ابراہیم نے کیا. کلام میں لکھا ہے لکڑیاں ساتھ رکھتا ہے بیٹے کو، بیٹا ساتھ لکڑیاں پکڑاتا ہے، لکڑیاں پکڑا کے ساتھ ساتھ چنائی کرتے ہیں، خوبصورتی سے چنا دیتے ہیں. اب بیٹا کہتا ہے کرنا کہاں ہے، تو باپ کہتا ہے خدا مہیا کرے گا، خدا خدا خدا. وہ بیٹے کو دیکھ رہا ہے اس کو میں نے کاٹنا ہے، آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ دیتا ہے. یہ ہے جان فشانی کے ساتھ جان کو نشاور کرنا. اور کلام میں لکھا ہے اب وہاں سے میری بیٹی کھڑی تھی، خدا آواز دیتا ہے، خدا آواز دیتا ہے. ابراہیم 3 آوازیں دی ہیں، رک نہیں رہا. ابراہیم شری روک لے، میں دیکھ گیا ہوں تو کتنا میرے ساتھ وفادار ہے، میں جان گیا ہوں کہ تو کتنا میرے ساتھ وفادار ہے. اپنے اپنے نشان کو دیکھیں، اپنے اپنے گول کو دیکھیں. کسی کو دیکھنے سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، نقصان ہوگا، آپ کی پرسنالٹی خراب ہو جائے گی. اپنے گول کو اچیو کرنے کے گول کو دیکھیں. خدا آپ کو بڑھانے کے لیے جب تک آپ جان شانی سے نہیں نہ چلیں گے. کیا لکھا ہے؟ خدا نے آواز دی، آپ کو خدا نے کلام کیا. باجی کے 3 بیٹے ہیں، موسیٰ بھی مار ہو گیا پچھلے دنوں میں. میں باجی کی طرف دیکھ کے بڑا پریشان کرنے کا، باجی آپ عادت میں نہیں آئے. باجی کہتے نہیں، موسیٰ نے ٹھیک سے ویسے کر کے نہیں ہے، بیٹے 3 ہیں. باجی کیوں ہے؟ ایکسیڈنٹ ہوا، میں نہیں رہ پاتی بچوں سے، بچوں کو بغیر میرے سے باہر نہیں جاتا. اس میں لکھا ہے لکڑیاں چھین دی، آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ دی، چھری پکڑ دیا تو گردن میں رکھی اپنی بالا نکال کے دو. کیا لکھا ہے؟ شانی پڑھ کے کیا ہے؟ تب خداوند کے فرشتہ نے آسمان سے، تب خداوند کے فرشتہ نے اسے آسمان سے پکار کے اے ابراہیم، اے ابراہیم. اس نے کہا میں حاضر ہوں. 3 آوازیں دی ہیں، پہلے ایک آواز پہ حاضر ہو گیا. اور اس طرح بات سنیں، سمجھ آ رہی میری بات کی؟ چھری اس کا مطلب بالکل گردن پہ ریڈی ہے. ایک آواز پہ حاضر ہو گیا، 3 آوازوں پہ رکا ہے. یہ ہے جان نشاور کرنا، جان دے دینا. ایسے برکت آتی ہے. 3 آوازیں دے کے روکا ہے، ایک آواز سے حاضر ہو گیا. اسے کہتے ہیں جان فشانی. اب پھر اس نے اس سے کہا تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا. اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا. لڑکے کا مطلب ہے تیرے سے جو نکلا ہے اس پہ ہاتھ نہ چلا، اور نہ اس سے کچھ کہہ، اور نہ اس سے کچھ، زور سے بولے، نہ کچھ اس سے کہہ.
क्योंकि अब मैं जान गया हूं हाँ जी, गौर से सुने, अब मैं जान गया हूँ कि तू खुदा से डरता है। ओए होए होए। खुदा कह रहा है आपके बारे में कोई अच्छा कमेंट कर दे ना तो बड़ी खुशी होती है। स्नेहा जी जब खुदा के बारे में कहते हैं, खुदा के बारे में कहते हैं कि स्नेहा मेरी बेटी बड़ी अच्छी है, तो आपके लिए जमीन पे रहने के लिए कोई जगह ही नहीं है। खुदा कह रहा है मैं जान गया हूं तुम मुझसे कितना प्यार करते हैं। हमारे से वो छोटी छोटी कमजोरियां छूटती नहीं है और हम कहते हैं हम फॉलोअर हैं उसके, हम यीशु के मानने वाले हैं। खुदा बरकत क्यों नहीं दे रहा? किसमें कमी है? किसमें कमी है? जान खुशानी किधर है? जान शामिल किधर है? बरकत कैसे मिलेगी? पेपरों के लिए, स्कूल के लिए हम सारा कुछ कर रहे हैं। कलाम में लिखा है तू सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान करे तो क्या करे? ये मशरिक से नहीं आती, ये शुमाल से नहीं आती, ये खुदा की तरफ से आती है। सब आगे क्या लिखा है? इसलिए कि तूने अपने बेटे का जो तेरा इकलौता है मुझसे दरेग ना किया। दरेग जो तेरा इकलौता था तूने इन्हों कट्टन तो में दरेग नहीं किया। अब थोड़ा जोर में पढ़ो। और अब्राहम ने निगाह की और अपने पीछे एक मेंढा देखा जिसके सिर लगा किधर है? छुरी किधर पकड़ी है? छुरी किधर पकड़ी है? अरे इधर आप मेरे पास है। बड़ा मुश्किल सी है। ये गालिब है, बड़ा मुश्किल है। और मैं लगाऊं कि मैं काले को कुर्बान करूं, मैं कोई बेटा नहीं किसी का लेकर अपने बेटे के पास। खुदा ने रोक के पीछे कहा पीछे दे तेरे लिए मेंढा। जब आप अपनी वो जाती खुशियां खुदा के लिए कुर्बान करेंगे तो खुदा की नस्ल के लिए ऐसी बरकत देगा कि आपकी सोच भी खत्म हो जाएगी। हम क्या कर रहे हैं सारा दिन? सुबह से लेकर शाम तक अपनी औलाद के लिए मरते हैं, गर्मी में जाते हैं कि ये सुकून करे, लेकिन उसने कहा कि नहीं, खुदा के लिए ये भी मैं कुर्बान करूंगा। अब खुदा ने रोका इसको। अब खुदा अपनी बातें कर रहा है। और खुदावंद के फरिश्ता ने आसमान से दोबारा इब्राहिम को पुकारा और कहा कि खुदावंद फरमाता है चूंकि तूने ये काम किया कि अपने बेटे को सुने जरा, ये जितनी बड़ी कुर्बानी होगी ना आपकी, जितनी बड़ी कुर्बानी उतनी बड़ी बरकत है। कुर्बानी करना शुरू कर दो। कुर्बानी कौन सी मांग रहा है खुदा आपसे? मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ कि मुझे पैसे दे। मैं तो अपनी कुर्बानी करके, अपनी जान दे के, गर्मी में मर के मैं कहता हूँ कि चर्च की कोई चीज ना खराब हो जाए। मैं कल की बात कर रहा था, मैंने कहा बिल पता नहीं कौन पे कर रहा है चर्च का, बिजली का। मुझे परेशानी लगी, मैंने कहा कि अगले साल हम एसी में इबादत करेंगे। तो बरकत कौन लेगा? तो ज्यादा कुर्बानी करेंगे। कुर्बानी हमारी कुर्बानी नहीं तो हमारी बरकत कहाँ से है? तो खुदा ने कहा मैं जान गया हूँ कि तू जो तेरा प्यारा है, जिसको तूने इसको भी तेरे से दरेग नहीं किया, मैं अपनी जात की सुने जरा, खुदा तो बड़ा कोई नहीं है। खुदा तो बड़ा कोई है? खुदा ने कहा मैं अपनी जात की कसम खाता हूँ कि मैं तुझे बरकत पे बरकत दूंगा। हालेलुया। अब आगे बढ़ेगा। बरकत पर बरकत होगा और तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों और समुंदर के किनारों की रेत की मानद कर बेटा, और जिसके सुलभ से खुदा चाहता है कि आप आसमान के तारों की मानद, जमीन के जर्रों की मानद में तेरी नस्ल को ऐसे बढ़ाना चाहता हूं, ऐसे बढ़ जाएंगे
गिने नहीं जाएंगे। एक ही बेटा है जिसके ऊपर छुरी रखी है। अब और तेरी औलाद अपने दुश्मनों के फाटक की मालिक होगी। ये वही बरकतें हैं जो हमने 28वें बाब में पढ़ी है। दोहराना दूसरी दफा कहा जाए तो इसका मतलब है खुदा आपके साथ सिंसियर है, उसकी तवज्जो आपके साथ है, वो आपकी तरफ देख रहा है। इस तरह की किताब का मतलब है दोहराना। खुदा ने दोहरा दिया दोबारा कि जान फिशानी से, अगर तुम जान फिशानी से मेरे साथ वफादारी से चलोगे, क्या लिखा गया? और तेरी नस्ल के वसीला से जमीन के सब कोने बरकत पाएंगे। तेरी नस्ल के वसीला से, जहां तो नस्लें बरकत नहीं पा रही, कुर्बानियां खत्म हो गई हैं, नस्ल बरकत नहीं पा रही, नस्लें बरकत पाएंगी। और कलाम में लिखा है, खुदा ने कहा कि तेरी नस्ल के वसीला से अब नस्लें बरकत पाएंगी। उसी के साथ वादा जिसको कुर्बान किया है कर सकता है। मैंने इसके साथ वादा किया है, मैं कहता हूँ मेरे साथ चर्च में आना करना है। कहता ठीक है बाबा, मैं इसने बड़ा मुझे इमोशनल में किया बाबा, मैं कभी कोई आपसे चीज नहीं मांगूंगा, ऐसे कहा था, बड़ा इमोशनल हो गया। मैंने कहा जब तक मेरी जिंदगी है तो मांगेगा। मैंने दिल में ये बात की, इसने पता खास कर मैं बाप हूँ, कहता मुझे डोगी ले गया। मैं कहता मेरे साथ चर्च जाया करेगा, कहता ठीक है। तो मैंने इसके पीछे डोगी रखा, सारा खानदान चर्च आ गया, तब इसका चर्च आ गया। बाइबल में लिखा है, एक साल की किताब में लिखा है, इस वाले को जरा पढ़ देना। एक साल की किताब 12वां बाब में लिखा है कि सादिक जो है ना अपने चुपाओं की भी जान की फिक्र करता है। वहाँ लिखा है, तब बिल्ली मना नहीं है, लेकिन लिखा है सादिक जो है ना, जो जुरात सवाद है, जो ईमानदार है, इंसान की किताब में लिखा है, पढ़ देना। सादिक अपने चौपाई की जान का ख्याल रखता है। आमीन। वो ले गया, मैं कैसे मैं क्या बैठ जा, मैं क्या शौक पड़ा, मैं क्या ना कर उन एसी के एयर मैं वो कह रही हूं एसी रखो, पीछे वो बोलने जैसे कि गर्मी लग रही है। उन एरे वास्ते सुबह उठना नहाना भी है, साफ सुथरा शर्ट साफ सुथरा करके इन्हें पकड़ना होता है। कल से इंजेक्शन लगवा के एक दिन पहले भी डॉक्टर को लेके कि कोई वायरस ना हो, अगर इंसाना दा इंसाना ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ बैक्टीरिया ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋ हालांकि मेरी खुद ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸੀ, लेकिन ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਬੜਾ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਤਾਲੀ ਵਸੇ ਨਹੀਂ इसलिए मैं क्या से अपनी जो नहीं समझा करूं, ये लिखा मैं कुत्ता रहता था, मैं कुत्ता मैं कहता ठीक है 40-45 की कोई गल तो बात है। आमीन। जब जान फशानी से जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो आप अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं। जब आप जान फशानी से अपने खुदा के साथ लिपटे रहेंगे, तो आप अपने नस्लों की ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं। हाँ जी। जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी क्योंकि तूने मेरी बात मानी। हाँ, तूने मेरी बात मानी है। अब इसको मैसेज को यहाँ पे खत्म नहीं करते, नेक्स्ट संडे